Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are studying about the power sharing and today's subtopic is why power sharing is desirable. This is the page number 6. Children, इस पैराग्राफ को थोड़ा हम बुक से देखेंगे, then we will start notes. So let's see. Why power sharing is desirable. Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflicts between social groups. Since social conflicts often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the utility of the nation. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. There is a second, deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens, through participation, acquire a stake in the system. तो चिल्ड्रन, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? तो इसमें हम दो रीज़न दे सकते हैं. पहला रीज़न तो ये है कि पावर शेयरिंग जो होती है उससे जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जो विवाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो कम हो जाते हैं. जो वायलेंस होने के चांसेस रहते हैं पॉलिटिकल स्तर पर, वो समाप्त हो जाते हैं. पावर शेयरिंग इसलिए भी अच्छी है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल लीडर, तो एंश्योर हो जाते हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के. यदि किसी मेजॉरिटी की बातों को मान भी लिया जाए, उसे पावर भी दिया जाए, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो वह किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है. इसके साथ साथ मेजॉरिटी के लिए ना सिर्फ प्रेजेंट बस के लिए अच्छा होगा, लेकिन इन फ्यूचर सिर्फ उसी मेजॉरिटी के लिए भी वो चीज़ डिस्ट्रक्टिव हो सकती है. दूसरा रीज़न ये दिया जा सकता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जब तक पावर शेयरिंग नहीं होगी तब तक वो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होगी. कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है. हर व्यक्ति को जो है सत्ता में पावर शेयर करने का अधिकार है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और इसलिए पावर शेयरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है. तो ये दो रीज़न दिखाए जा सकते हैं. तो जो पहला रीज़न है उसे प्रूडेंटल रीज़न माना जा सकता है, और जो सेकंड रीज़न है उसे मॉरल रीज़न माना जा सकता है. Let's see the notes. So children, start writing from here. Why is power sharing desirable? Thus, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflicts between social groups. And second, there is deeper reason why power sharing is good for democracy. Power sharing is very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. Let us call the first set of reason prudential and the second moral. Why? Prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes. Moral reasons emphasizes the very act of the power शेयरिंग एज वैल्यूबल. अब जैसे कि अभी मैंने बताया कि पावर शेयरिंग दो तरीके से अच्छी होती है, एक तो प्रूडेंशियली और दूसरा मॉरली. और जो पावर शेयरिंग है इससे एक पहला तो ये है कि जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि पावर शेयरिंग जो है एक डेमोक्रेसी की आत्मा होती है, और पावर शेयरिंग से जो रूल्स होते हैं वो इफ़ेक्टिवली काम करते हैं और लोग उसमें अच्छी तरीके से, सही तरीके से रह पाते हैं. अब देखिए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के फॉर्म्स भी हैं, वो क्या हैं देखते हैं. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द notions of undivided political power.
For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of a person located at one place. One basic principle of power sharing is that people are the source of all political power. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of public politics. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो चिल्ड्रन, पावर शेयरिंग जो है कि उसके कुछ फॉर्म्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है ये पॉलिटिकल पावर को अनडिवाइडेड कर देता है। मींस अपोजिशन में जो लोग हैं वो हमेशा ही इस बात पे ध्यान रखते हैं कि जो पावर में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो एक फॉर्म उसका ये है कि अपोजिशन उसकी होती है किसी भी सत्ता की। सेकंड ये है कि लंबे समय के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो उसमें एक पर्सन या एक ग्रुप जो है किसी भी एक स्थान पर जो है वो नहीं रहेगा। यह बिलीव किया जाता है कि समय समय पर उसमें परिवर्तन हो जाता है। फिर जो बेसिक प्रिंसिपल है पावर शेयरिंग का वो है पॉलिटिकल पावर जो होती हैं, सारी पॉलिटिकल पावर जो होती हैं वो उनके सोर्स क्या होते हैं, लोग होते हैं। फिर फोर्थ है गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो किसके जो ग्रुप्स होते हैं और जो ग्रुप्स के व्यूज़ होते हैं उन वो सोसाइटी में उनमें एग्जिस्ट करती है। एंड सभी को अपनी आवाज़ पब्लिक पॉलिटिक्स में सभी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार होता है। फिर इसलिए कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं वह मेनली सिटीजन्स की पावर कहलाती हैं। ऐसा कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो सिटीजन्स के फ़ायदे की हों, हित की हों, सिटीजन्स के लिए हों। तो चिल्ड्रन, यहाँ हमने पावर शेयरिंग के फॉर्म्स देखे और पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है उसको देखा। नाउ लुक let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. Power is shared among different organs of the government, such as the legislature, executive and judiciary. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of the government placed at the same level to exercise different powers. Power can be shared among governments at different levels. A general government for the entire country and governments at the provincial or regional level. The division of higher and lower levels of government is called the vertical division of power. Power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic groups. Community government is a good example of this arrangement. Power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement control or influences those in power. चिल्ड्रन, देखिए कुछ मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट होते हैं जो कि पावर शेयरिंग से निकलकर सामने आते हैं। किस तरह से गवर्नमेंट उसमें चलाई जा सकती है, जो स्टेप्स में 3 लोगों के बीच में मेनली डिवाइड हो जाती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और सभी जो होते हैं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, मतलब हर एक का किसी न किसी पर प्रेशर बना रहता है, इसलिए वो अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरा है जो पावर होती है वो गवर्नमेंट जो इस तरह से शेयर करती है कि जो पावर है वो सिर्फ केंद्र या सेंट्रल में ना हो करके जो है सेंट्रल के अधीन तो रहेगा, लेकिन वो डिफरेंट लेवल पर काम कर सकते हैं। जैसे कोई पूरे कंट्री है उसमें डिफरेंट रीजन्स हैं, वहाँ पर पावर को जो है वो डिवाइड कर लिया जाता है हाई और लोअर लेवल में, और इस तरह से गवर्नमेंट का काम होता है और इसे वर्टिकल डिवीज़न कहा जाता है पावर का। पावर जो है इसमें सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, इनके बीच में भी शेयर की जाती है। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है यह एक अच्छा एग्जांपल है पावर शेयरिंग का।
फिर है पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो मूवमेंट हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनमें क्या है, इनमें कंट्रोल का काम करती है। कोई एक जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसीज़न नहीं ले सकता, उन्हें दूसरों के हितों का ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। सो चिल्ड्रन, हियर इज़ योर चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स, पावर शेयरिंग इज़ finished. Children, here is giving the exercise of this chapter. So you have to complete your fair copy by yourself with these exercises, and also you have to read the chapter deeply because I am giving you notes. You have to read chapter deeply. If you have any doubt, you can ask me in doubt class. In the next video, we will start the new chapter.